Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, reaching the age of adolescence. Warm-up exercise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, blast off. We have left off. The ISRO Mission Control Center monitors a space shuttle mission from takeoff to landing. Like the Mission Control Center for the space program, your body needs control centers to monitor your body systems. Your endocrine system is the control system of the body. They have feedback mechanisms that help coordinate your body functions. तो देखिए, जो आपका मिशन कंट्रोल सेंटर है आपके स्पेस प्रोग्राम के लिए, ऐसे ही हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि वो हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करे. तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, आई एम श्योर आपके इसके बारे में पता होगा, ये कंट्रोल सिस्टम है बॉडी का, राइट. ये क्या करते हैं कि इनके पास फीड मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से बॉडी फंक्शंस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं. Adolescence. Growth begins from the day one is born. But upon crossing the age of 10 or 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. The change taking place in the body is part of growing up. They indicate that you are no longer a child but are on the way to becoming an adult. Growing up is a process. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. Adolescence begins around the age of 10 and lasts up to 19 years of age. Since this period covers the teens, 13 to 18 or 19 of years age, adolescents are also called teenagers. The human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. The changes that occur in a boy or girl at the stage of puberty are controlled by hormones secreted by gonads, that is ovaries or testes. In males, the sex hormones found is testosterone, and in female, two sex hormones are found. They are estrogen and progesterone. देखिए, जिस दिन से हमारा जन्म होता है हमारी ग्रोथ तब से स्टार्ट हो जाती है, बट जैसे हम 10 या 11 की जो एज उसे क्रॉस करते हैं तो एक सडन ग्रोथ होती है जो कि नोटिसेबल होती है. तो ये जो चेंज होता है बॉडी में, ये आपका जो आप ग्रो अप कर रहे हैं उसका पार्ट है. इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि अब आप चाइल्ड नहीं रहे, अब आप एडल्ट बनने की राह पर चल पड़े. तो ग्रोइंग अप इज़ अ प्रोसेस. तो जो पीरियड होता है जब बॉडी जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस होता है एंड देन आप किसी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, दैट पीरियड इज कॉल्ड एडोलेसेंस. एडोलेसेंट अराउंड आपका 10 से शुरू होता है और 19 ईयर्स तक चलता है. तो इस पीरियड को टीनेजर भी कहा जाता है. टीनेजर जो एडोलेसेंट्स होते हैं इस एज के, उन्हें टीनेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 13 से आपका 19 तक चलता है. तो टीन आता है 13, 14, 19 लाइक, तो इसीलिए टीनेजर्स. तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में. ये चेंजेस क्या करते हैं, दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी आपकी कब एंड होती है, जब एडोलेसेंट जो है वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं. तो चेंजेस बॉयज़ और गर्ल में आते हैं प्यूबर्टी के चेंजेस में. तो इनको कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स जो कि गोनाड सीक्रेट करते हैं. गोनाड्स यानी कि ओवरीज और टेस्टिस. मेल्स में सेक्स हार्मोन जो पाया जाता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, एंड फीमेल में दो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है ईस्ट्रोजन एंड progesterone. Changes at puberty. Increase in height. The most conspicuous change during puberty is a sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arms and legs, elongate and make a person tall. Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then growth slows down, while others may grow at a gradually. देखिए, प्यूबर्टी में सबसे पहले जो है हाइट इंक्रीज होती है, राइट. इसमें क्या होता है कि आपकी सडन इंक्रीज हो जाता है हाइट में. आपकी इस टाइम पे जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो आर्म्स एंड लेग्स की, वो एलोंगेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन टॉल दिखता है. इनिशियली गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से फास्ट ग्रो करती हैं, बट 18 ईयर्स की एज तक वो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचते हैं. इसके बाद जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है, जैसे हाइट में किसी की ग्रोथ होता है, वो हर इंडिविजुअल में आपका डिफरेंट होता है. कुछ सडनली ग्रो कर जाते हैं प्यूबर्टी में, जबकि कुछ की ग्रो स्लो होती है. Change in body shape. In boys, the muscles of the body grow more prominently than in the girls. Thus, change occurring in adolescent boys and girls are different. अब body shape में changes आते हैं, तो देखिए जो muscles होते हैं boys की body के, वो ज़्यादा आपके prominently grow करते हैं comparatively girls. Voice change. At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. Boys develop large voice boxes. The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of the throat called Adam's apple. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size.
Generally, girls have a high-pitched voice, whereas boys have a deep voice. In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice becomes hoarse. The state may remain for a few days or weeks, after which the voice becomes normal. तो puberty में जो voice box या जो larynx होता है वो grow करना start हो जाता है. Boys की जो है larger voice boxes होते हैं. तो आप यहाँ पे जिस देख सकते हैं थ्रोट के पास बॉयज़ का, जिसे कहते हैं एडम्स एप्पल भी. गर्ल्स में जो लारिंक्स होता है वो हार्डली विजिबल होता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है. तो जनरली गर्ल की हाई पिच्ड वॉइस होती है जबकि बॉयज़ की डीप वॉइस होती है. तो कई बार क्या होता है कि एडोलेसेंट बॉयज़ में कि जो मसल्स होती है ना ग्रोइंग वॉइस की, वो होर्स हो जाती हैं, राइट. और ये जो स्टेट होता है ये कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक रहता है और उसके बाद वॉइस फिर से नॉर्मल हो जाती है. Increase in activity of sweat and oil glands. During puberty, there is an increased secretion of soil and oil sebaceous glands. It is because of increased secretion that many young people get acne and pimples on their faces. Puberty के टाइम पे क्या होता है कि sweat and oil glands होते हैं ये आपके एक्टिव हो जाते हैं, राइट. और इसकी वजह से इंक्रीज सिक्रीशन की वजह से बहुत सारे यंग पीपल में एक्ने और पिंपल्स होता है उनके फेसेस पे. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स. दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इवन इन infant stage, but they reach maturity and complete development during puberty. Testes and ovaries also start producing sperms and eggs respectively. देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो तो इन्फेंट स्टेज पे भी होते हैं, बट जैसे ही आप प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तो फिर ये मेच्योरिटी में पहुंचते हैं और उसके बाद कंप्लीट डेवलपमेंट होता है. डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual characters. These characters which develop at the time of attaining sexual maturity and help to distinguish the male from the female are called secondary sexual characters. Secondary sexual characters are external characters which are not directly involved in the process of reproduction. The changes which occur during adolescence are controlled by chemical substances called hormones. तो देखिए आपके secondary sexual characters ये होते हैं जो आपके डेवलप होते हैं व्हेन यू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, और ये मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं आपके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो देखिए जब चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस के टाइम पे तो इनको कंट्रोल करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें कहा जाता है हॉर्मोन्स. Hormones play a large role during puberty. They are the cause of many of the body's physical changes during puberty. Hormones will cause your body shape to change, breast to grow, hair to develop, and periods to begin. Hormones are also to blame for pimples and acne if you have experienced any, since the oil glands in your skin become more active during puberty. Love them or hate them, hormones will be the cause of many of the changes as you pass from childhood through adolescence. The hormones are produced in special organs called endocrine glands. There are a number of endocrine glands in males and females of humans. देखिए हॉर्मोन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. तो बहुत सारे चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम में बॉयज़ की बॉडी में एंड गर्ल्स की बॉडी में, विच कैन बी ईजिली डिस्टिंग्विश्ड. अब जैसे कि आपके पिंपल्स या एक्ने ये भी हार्मोन्स की वजह से हो जाते हैं, राइट. क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं आपके स्किन की वो आपकी एक्टिव हो जाती हैं प्यूबर्टी के टाइम पे. ओके तो जो हार्मोन्स हैं इनको प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल ऑर्गन्स जिन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड. और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपके मेल्स एंड फीमेल्स में. जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में देखिए टेस्टिस मेल इस सेक्स हार्मोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन. इसका फंक्शन क्या है? स्पर्म प्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट, एग प्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट. ओके डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इनसाइड व्हिच मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड डेवलप. और आपका ओवरी फीमेल में सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन. Testosterone hormones produced by testes bring about changes in boys and estrogen produced by ovaries in girls. Testosterone and estrogen are called sex hormones. The activities of testes and ovaries are under the control of hormones from another gland called the master gland or pituitary gland. This gland is located at the base of the brain. Endocrine glands have no ducts. For those reasons, they are also called ductless glands. The secretion of endocrine glands are poured directly into the blood. The hormones are required in extremely small quantities. Increase or decrease in the specific quantity is harmful for the body. अच्छा देखिए जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है ये बॉयज़ में चेंजेस लेके आता है, और जो ईस्ट्रोजन है जो ओवरीज में प्रोड्यूस होता है वो गर्ल्स में चेंजेस लेके आता है. तो टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन आपके जो दो हार्मोन्स है इन्हें कहा जाता है सेक्स हार्मोन्स. तो जो एक्टिविटीज़ होती है टेस्टिस एंड ओवरीज की अंडर कंट्रोल होती हैं हार्मोन्स के, जो दूसरी ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं उसके कंट्रोल में होता है, और ये आपकी ग्लैंड जो है ब्रेन की बेस में लोकेटेड होती है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट्स नहीं होता, इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है. और आपके जो सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का वो डायरेक्टली आपका ब्लड में पोर्ट होता है. हार्मोन्स हालांकि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, बट अगर थोड़ा सा भी इनकी स्पेसिफिक क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ गए या घट गए तो ये हार्मफुल हो सकते हैं बॉडी के लिए. Hormones other than sex hormones.
The other control system in your body is the endocrine system. In the nervous system, message travel quickly through nerves to and from all parts of your body. In the endocrine system, chemicals called hormones carry message throughout the body. Besides the pituitary, the testes, the ovaries, there are other endocrine glands such as thyroid, pancreas and adrenals. अब जो आपके दूसरे कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी के, आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम में भी है, तो नर्वस सिस्टम जो है वो मैसेजेस को ट्रैवल करता है क्विकली नर्व्स के थ्रू टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स, ये मैसेजेस को कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी. अब पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा जो टेस्टिस और ओवरीज है, इनके अलावा आपके दूसरे ग्लैंड्स भी हैं जैसे कि थायराइड, पेनक्रियास एंड adrenals. Your body doesn't respond as quickly to messages from the endocrine system. Saliva travels through a small tube called a duct from the salivary gland to your mouth. Endocrine glands do not have ducts. Hormones are released by endocrine glands directly into your bloodstream. These hormones travel through the blood to reach target tissues. Some endocrine glands are found in the brain, pineal and pituitary glands. The pineal gland produces a hormone that controls your pattern of sleeping and waking. The pituitary gland makes several hormones that regulate many bone activities, including growth and reproduction. Other endocrine glands include the pancreas and adrenal glands, which are found in the abdomen. The pancreas makes a hormone that controls the amount of sugar that is present in your bloodstream. The adrenal glands make several hormones, including hormones that help your body respond in times of physical or emotional stress. देखिए हमारी जो बॉडी है वो इतनी जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करती जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से उसको मैसेजेस आते हैं. सलाइवा आपका ट्रैवल करता है एक स्मॉल ट्यूब जिसे डक्ट कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड से हमारी माउथ तक. एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट्स नहीं होते, तो हार्मोन जो है रिलीज जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में होते हैं. तो ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं और टारगेट टिश्यू तक पहुँचते हैं. कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पाए जाते हैं ब्रेन, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में. तो जो पीनियल ग्लैंड्स है वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न और वेकिंग पैटर्न को कंट्रोल करती है. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है जो कि बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करती है, जिसमें आपका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन भी इंक्लूडेड है. दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं जिसमें आपका पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं, ये आपके एब्डोमेन में पाए जाते हैं. पेनक्रियाज जो है एक हार्मोन बनाती है जो अमाउंट ऑफ शुगर को कंट्रोल करती है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है. एड्रिनल ग्लैंड्स भी बहुत सारे आपके हार्मोन्स बनाती है. इसमें आपका एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है आपके जब कोई भी इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस होता है उस टाइम पे. सम हार्मोन्स एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन. तो देखिए आपको कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं और उनके फंक्शन. नंबर 1 इज ओरिजिन, हाइपोथैलेमस. आपके हार्मोन्स है स्टिमुलेटर्स एंड इनहिबिटर्स. फंक्शन है पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेशन. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी एंटीयर, इसका ओरिजिन एंड हार्मोन है ACTH, FSH. ओके, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, LH, TSH. अब फंक्शन क्या है देखिए, ACTH का एड्रिनल कंट्रोल, FSH का गोनाड रेगुलेशन, ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ रेगुलेशन, मिल्क प्रोडक्शन, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन, LH गोनाड रेगुलेशन एंड TSH थायराइड कंट्रोल. राइट, सो गो थ्रू दीज हार्मोन्स और इनके फंक्शंस के बारे में. Reproductive phase of life in humans. In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The first menstrual flow begins at puberty in sperm menarche. The monthly cycle of changes in a sexually mature female reproductive system is a menstrual cycle. The average length of a menstrual cycle is 28 days. However, the cycle can vary in length from 20 to 40 days. Each month, the female undergoes changes that help prepare her body for having a baby. These changes include maturing of the egg, producing female sex hormones, and preparing the uterus for the fertilized egg. Hormones from the pituitary gland start the development of an egg and production of sex hormones in the ovary. The menstrual cycle is divided into 3 phases. Phase 1 is a phase of menstrual flow or menstruation. Menstrual flow is made of tissue cells from the thickened lining of the uterus and blood. This flow usually lasts from 4 to 6 days. देखिए फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ये आपका प्यूबर्टी से शुरू हो जाता है 10 to 12 ईयर्स तक और आपका अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स तक रहता है. तो पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होता है प्यूबर्टी में, दैट इज टर्म्ड एज मेनार्क. अब जो मंथली साइकिल होती है ऑफ चेंजेस किसी भी सेक्सुअली मैच्योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है. तो जो एवरेज लेंथ होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 डेज होती है. हालांकि ये डिफर होती है, वेरी करती है लेंथ में 20 से लेके 40 डेज तक. तो हर मंथ जो है फीमेल अंडरगोज चेंजेस जो उसकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर हैविंग अ बेबी. इसमें आपका
बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, लाइक मेच्योरिंग ऑफ द एग, आपका प्रोड्यूसिंग फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड यूटेरस को प्रिपेयर करना फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है आपकी वो 3 फेजेस में डिवाइड है। तो फेज 1 आपका होता है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन भी जिसे कहते हैं। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो आपका टिश्यू सेल से बना होता है फ्रॉम द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड ब्लड। तो ये जो यूजुअली ये जो फ्लो होता है आपका 4 to 6 days तक रहता है। The menstrual cycle has 3 phases. Phase 1, menstrual flow. Phase 2, development and release of egg and thickening of lining of the uterus. Phase 3, breakdown of lining if egg is not fertilized. तो menstrual cycle के 3 phase हैं। Phase 1 जो है आपका menstrual flow है। Phase 2 आपका होता है development और जो release होता है egg का, and lining जो यूटेरस की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है। एंड फेज 3 होता है कि जो लाइनिंग होती है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो। In phase 2, an egg develops in the ovary and the lining of the uterus thickens. Ovulation occurs about 14 days before menstrual flow begins. The last phase, phase 3, is the phase between ovulation and menstruation. The lining of the uterus continues to thicken. If the egg is fertilized, it can attach to the wall of the uterus and begin to develop while hormones continue to be produced. If the egg is not fertilized, the hormone levels decrease. The lining of the uterus breaks down and menstruation begins. At 45 to 50 years of age, the menstrual cycle stops. Stoppage of menstruation is termed menopause. अच्छा, फेज 2 में क्या होता है कि एक डेवलप होता है एग ओवरी में एंड जो लाइनिंग होती है यूटेरस की वो थिक हो जाती है। ओव्यूलेशन हर 14 डेज में होता है आपका, जब आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन होता है। उसके बाद फिर जो लास्ट फेज यानी कि फेज 3 होता है, ये आपका होता है फेज ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन के बीच में। तो जो लाइनिंग होती है यूटेरस की फिर से कंटिन्यू होती है थिक होना स्टार्ट। अगर एग फर्टिलाइज होता है तो ये अटैच हो जाता है वॉल के यूटेरस के साथ और उसके बाद ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, जबकि जो हार्मोन्स हैं वो कंटिन्यूसली वो प्रोड्यूस होते हैं। और अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो जो हार्मोन लेवल्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं, तो जो लाइनिंग है यूटेरस की वो ब्रेक डाउन हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो 40 से लेकर 50 ईयर्स की एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाता है एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड मेनोपॉज। Determination of sex of a baby. Inside the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structures called chromosomes in the fertilized egg. Chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. 2 chromosomes out of these are the sex hormones named X and Y. A female has 2 X chromosomes while a male has 1 X and 1 Y chromosomes. The gametes have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosome, but sperms are of 2 kinds. One kind has X chromosome and the other kind has Y chromosomes. अच्छा, फर्टिलाइज्ड एग या जो जाइगोट होता है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है जिससे पता चलता है कि बेबी का सेक्स क्या है, वेदर इट्स अ फीमेल और मेल। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। तो क्रोमोसोम आपके हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हर ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो 2 क्रोमोसोम होते हैं इनमें से वो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नाम है एक्स एंड वाई। तो फीमेल में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम्स जबकि मेल में होते हैं 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स। तो जो गैमेट्स यानी कि एग या स्पर्म है इनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसका हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा, बट स्पर्म आपके 2 टाइप के होते हैं, है ना, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। See figure, when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and thus develops into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. It is clear that sex chromosome of the father determine the sex of unborn baby. तो देखिए, जैसे ये फादर है, फादर के पास है ये मेल XY क्रोमोसोम एंड जो फीमेल है XX क्रोमोसोम। ओके, अगर एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज होता है एक्स के साथ तो ये आपका होगा बेबी गर्ल, एंड आपका जब वाई आपका होगा किसके साथ, एक्स के साथ, तो ये वाई एक्स बनेगा या एक्स वाई बनेगा, दैट इज बॉय। सो हु डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द बेबी? इट्स अ फादर. The belief that the mother is responsible for the sex of her baby is completely wrong. तो ये लोगों का मानना होता है कि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, whether male or female. ये completely गलत है. Endocrine system. Our body has a number of organs called endocrine glands. Their main function is to produce chemical secretions, and these secretions are known as hormone. The term hormone has been derived from the Greek word hormone, meaning
to set in motion or to spur on. Hormones play an important role in control, coordination, and regulation of the functioning of tissues and organs in the body. For the smooth and normal functioning of the body, different hormones are required in different quantities. हमारी बॉडी में नंबर ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि केमिकल सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना, जिन्हें कहते हैं हार्मोन्स. तो आपका देखिए हार्मोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेशन करते हैं फंक्शनिंग्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. तो स्मूथ और नॉर्मल फंक्शनिंग अगर बॉडी की हो, इसके लिए जो डिफरेंट हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी डिफरेंट क्वांटिटीज में. The endocrine system is responsible for chemical coordination in the animals, including men. There are different endocrine glands for secretion of different hormones. Pituitary gland. Hyperactivity of cells of pituitary gland causes Cushing's disease. In this disease, excessive growth of hair occurs in males. In some cases, this disease may even cause atrophy of testes leading to impotency. In females, this disease causes sterility, muscularization, growth of beard, mustache, etc. अच्छा, हाइपर एक्टिविटी अगर हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स की तो इसकी वजह से कुशिंग डिसीज़ होती है. तो इस डिसीज़ में क्या होता है कि एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ होती है मेल्स में, और कुछ केस में जो डिसीज़ है उसकी वजह से एट्रोफी हो जाती है टेस्टिस की, जिसकी वजह से इम्पोटेंसी हो जाती है मेल्स में. फीमेल में इस डिसीज़ की वजह से स्टेरिलिटी, मैस्कुलाइजेशन हो जाता है और आपका ग्रोथ होती है बियर्ड एंड मुस्टैक की. डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन GH और somatotropic hormone STH secreted by pituitary gland causes dwarfism, that is retarded growth of the long bones, while its excessive secretion or hyperactivity causes gigantism, excessive growth of long bones, making a person very tall. अगर देखिए डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होता है कि ये ग्रोथ हार्मोन आपका सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड. तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से ड्वार्फिज्म होता है, यानी जो लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है. जबकि अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ एक्सेसिव हो जाएगी और इससे पर्सन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा. थायराइड ग्लैंड. हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म कॉजिंग serotonism in young children. In this disease, the child has stunted growth, short club-like fingers, deformed bones and teeth. The skin becomes rough, dry and wrinkled with scanty hair growth. The abdomen gets pot-bellied and the child is mentally retarded. Hypoactivity of thyroid gland also causes abnormal swelling of thyroid called goiter. अच्छा, हाइपोएक्टिविटी हो जाती है जब थायराइड ग्लैंड की तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है. इस डिसीज़ में चाइल्ड की जो है ग्रोथ आपकी हो नहीं पाती है अच्छे से, शॉर्ट क्लब लाइक फिंगर्स होते हैं, बोन्स एंड टीथ डिफॉर्म्ड होते हैं, स्किन रफ, ड्राई और रिंकल्ड जिसमें बहुत ही स्कैंटी हेयर ग्रोथ होती है. एब्डोमेन आपका पॉट बैलिड हो जाता है और कई बार जो है चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड भी हो जाता है. और जब हाइपो एक्टिविटी होती है थायराइड ग्लैंड की उसकी वजह से एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है थायराइड की, जिसे कहते हैं गोइटर. Pancreas. Hyposecretion of insulin secreted from pancreas causes diabetes mellitus, in which glucose present in excess in the blood sometimes appear in urine. जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रीशन होता है, ये आपका पेनक्रियास सिक्रीट करता है तो इसकी वजह से डायबिटीज़ होता है. जब जो ग्लूकोज आपका एक्सेस में प्रेजेंट होता है वो आपके यूरिन में आता है. फिर hormones and emotions. As well as being the cause of many of the physical changes to your body, hormones and emotions are very connected. They can send your emotions into overdrive. You may be feeling on top of the world one day but lousy the next, and you won't be able to figure out why. Don't worry, it's normal to be confused by the effects your hormones are having on. देखिए, जैसे आपके बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं तो हॉर्मोन्स एंड आपके जो इमोशंस होते हैं कनेक्टेड होते हैं. ये क्या करते हैं कि कई बार आपको ऐसा लगता है आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं, अगले दिन आप बहुत ही डल फील करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है, बट एक्चुअली इट्स नॉर्मल. ओके, इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब के सब हॉर्मोन्स का इफेक्ट है. Girls start to experience a mix of emotions when the hormones kick in at puberty, while guys get lots of physical changes in their bodies. It is important to maintain good nutrition so they can avoid hormonal imbalance and mood swings. तो गर्ल को ये जो मिक्स ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही उनके जो हॉर्मोन्स हैं दे किक स्टार्ट एट प्यूबर्टी. तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम
न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन करके रखें, जिससे कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस और मूड स्विंग्स को हम अवॉइड कर सकते। द मोर यू कैन अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स कैन अफेक्ट योर बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, द बेटर यू विल बी एबल टू कोप विद वॉट एवर हार्मोन्स थ्रो योर वे। जस्ट रिमेंबर दैट यू आर स्टिल योर अमेजिंग सेल्फ. Try to see the upside of things and you will discover more about yourself and all the great things you can achieve in your life. And just remember, puberty doesn't last forever. तो देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने हार्मोन्स को समझेंगे कि हमारे बॉडी, माइंड, इमोशंस को किस तरह से अफेक्ट करेंगे, तो बेटर आप उनसे कोप अप कर पाएंगे। एंड सिर्फ आपको इतना याद रखना है दैट आप जैसे भी, यू आर जस्ट अमेजिंग। आप हमेशा अपसाइड्स को देखें एंड देन यू विल डिस्कवर अबाउट योर सेल्फ, और आप जितनी भी ग्रेट चीज़ हैं उन सबको अचीव कर पाएंगे। एंड ये बात हमेशा याद रखनी कि प्यूबर्टी हमेशा नहीं होता, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। Nutrition needs of the adolescents. The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual's health. To keep the body healthy, every human being at any age needs to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. देखिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो किसी भी एज का हो, एक तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। Adolescence is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. Balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrates, fats, and vitamins in required proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal, and vegetable is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishment. For infants, mother's milk provides all the nourishment that they need. Iron builds blood, and iron-rich foods such as leafy vegetables, traggery, meat, citrus, Indian gooseberry, amla are good for adolescents. तो देखिए, एडोलेसेंस में आपकी रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो इस टाइम पे आपको केयरफुली अपनी डाइट को प्लान करना चाहिए। बैलेंस डाइट आपको लेना चाहिए। एंड आपकी जो इंडियन मील होता है, जिसमें आपकी रोटी, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें होती हैं, चावल, ये बैलेंस्ड मील है। फ्रूट्स आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। और इन्फेंट के लिए तो मदर का मिल्क जो होता है वही सारे नरिशमेंट उसको प्रोवाइड करता है। आपका जैसे आयरन रिच फूड लेना चाहिए, जैसे लीफी वेजिटेबल है, जैगरी, मीट, सिट्रस। पर्सनल हाइजीन, everyone should have a bath at least once every day. It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes makes the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. If cleanliness is not maintained, there are chances of bacterial infection. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. Say no to drugs, alcohol and cigarettes. हर किसी को रोज़ नहाना चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो स्वेट ग्लैंड्स की इंक्रीज एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, बॉडी स्मेली हो जाती है। तो हर बॉडी पार्ट को वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए एवरीडे। अगर आप क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। आपको वॉक करना चाहिए, प्ले करना चाहिए, इससे आपकी बॉडी फिट और हेल्दी रहेगी। ओके और आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आउटडोर गेम्स भी खेलना चाहिए, एंड यू शुड से नो टू ड्रग्स, अल्कोहल एंड सिगरेट्स। Notes for the chapter. Pituitary gland is considered as a master gland. Children gain height during adolescence. The onset of puberty and maturity of reproductive parts are controlled by hormones. Adrenaline from adrenal gland is considered as an emergency hormone. Pancreas is a heterocrine gland that secretes both hormones and enzymes. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।